السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی جناب, کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام سر. تو ویلکم ٹو یور فائنل سیمسٹر فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ اینڈ مینجمنٹ کورس. جی تو اسٹارٹ کریں ہم. یس سر. اوکے جی. جی جناب, تو ہمارا یہ فرسٹ جو ہے وہ انٹریکٹیو سیشن ہے فارماسیوٹیکل مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ کا, سیکنڈ سیمسٹر 2020. اس میں ہم بریف ڈسکشن کریں گے ہمارے پریویس ایگزام کی, یعنی کہ جو 9th سیمسٹر کا آپ کا ایگزام تھا اس کے ریزلٹس ہیں. کرنٹ سیمسٹر کی جو کورس آؤٹ لائن ہے. آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ یس سر. اوکے جی. اور اس سیمسٹر میں ہماری کیا مین ریسورسز رہیں گی ریڈنگ کی, اور کیا ہمارا پلان ہے ٹیچنگ کا اور اسسمنٹ کا. ٹھیک ہے جی, تو پہلے آپ اپنے تاثرات بتائیے کیسا رہا آپ کا رزلٹ 9th سیمسٹر کا مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ. جی بھائی, کسی کی کوئی خیالات نہیں؟ الحمدللہ سر اچھا رہا. اچھا ہو گیا. ٹھیک جی. کسی کی کوئی شکوہ شکایت کوئی ناراضگی تو نہیں ہے اس معاملے نو سر. نہیں سر. نو سر. اوکے جی. ٹھیک جی, تو بریفلی ہم اپنے دیکھ لیتے ہیں پریویس ایگزام کو. اس میں ہمارے جو سبجیکٹیو کوشچنس تھے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کوشچنس پیپر میں آئے تھے اس میں سے ایک کوشچن تھا چیلنجز ٹو بینگ این ایکسیپشنل مینیجر. اچھا, پہلے آپ یہ بتائیے کہ جی آپ کے خیال میں پیپر ویسے ایزی تھا یا بہت زیادہ مشکل تھا, ایوریج تھا؟ ایوریج تھا سر. ایوریج تھا. سر ایزی تھا سر. ایزی تھا سر. ٹھیک ہے جی. تو ایک جو سوال تھا ہمارے پاس چیلنجز ٹو بینگ این ایکسیپشنل مینیجر. اس کو زیادہ تر لوگوں نے جو ہے وہ صحیح اٹیمپٹ کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ سوال کو صحیح سے اٹیمپٹ نہیں کر پائے اور جو اس کا صحیح آنسر ہے اس تک نہیں پہنچ سکے. اچھا جی, جو بریف ڈسکرپشنس تھی اس میں سے کنٹیجنسی پلاننگ جن لوگوں نے اٹیمپٹ کیا ہے اس میں سے کافی لوگوں نے اس کو جو ہے وہ غلط ڈسکرائب کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے جو مین پارٹس تھے سینیریو پلاننگ اور کرائسس مینجمنٹ پلاننگ, ان دو چیزوں کو بتائے بغیر جو ہے وہ بہت ساری باتیں کہی ہیں, لیکن کیونکہ اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے, بیسک کنسیپٹ ہے, اس کو نہیں بتا سکے. اسی طرح سے شیئرڈ ویلیوز پہ لوگوں نے ایک ایک پیج لکھ دیا ہے, لیکن ان میں سے کئی لوگوں نے جو دو بنیادی اس کا کرائٹیریا بنتا تھا کہ وہ ویلیوز جو کامن ہوں among the all employees of an organization اور کانشیس جو بلیفس ہوں, یہ دو چیزیں کانشیس بلیف ہونا اور شیئرنگ among every employee of an organization, یہ دو باتیں لکھے بغیر جو ہے وہ ایک ایک پیج تک بھی لوگوں نے اس پہ لکھ دیا.
स्मार्ट गोल्स जो है वो तकरीबन तमाम ही लोगों ने जो है, जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसने स्मार्ट गोल्स को लाजमी अटेम्प्ट किया है और तकरीबन सही इस पे जो है वो आंसर किया है। ज़्यादातर लोगों ने सेगमेंटेशन और पोजीशनिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं और उसको बहुत कम लोग जो है वो सही तरह से बता सकेंगे सेगमेंटेशन को और पोजीशनिंग को। ठीक है जी। देन हमारे पास था बिहेवियर पर्सपेक्टिव और कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव। अच्छा, जिन लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया है उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव को मिक्सअप करके किसी और पर्सपेक्टिव के साथ, यानी कि जवाब तो उन्होंने देना था कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव का, ये उन्होंने ऑप्ट किया कि हम कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव बताएंगे, लेकिन उसको ज़्यादातर जो मिक्सअप किया था वो ट्रेड पर्सपेक्टिव के साथ किया था और पावर इन्फ्लुएंस के साथ किया था। इन दो चीज़ों के साथ जो है वो मिक्सअप कर दिया था। तो ऑब्वियसली जब आप कंटीजेंसी पर्सपेक्टिव बताना चाहेंगे लेकिन आप 2 से 3 पेज कॉम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव के ऊपर लिख जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स जो है वो लेस देन 1 ही हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाएंगे। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्वांटिटी जो है वो कितनी ज़्यादा अल्फाजों की यूज़ की है, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर की है इस सवाल के जवाब में। अच्छा जी। देन फोर ड्राइव थ्योरी, जो फाइनल क्वेश्चन था हमारे पास, फोर ड्राइव थ्योरी और फोर फेज प्रोडक्ट साइकिल में, उसमें से ज़्यादातर लोगों ने फोर फेज प्रोडक्ट साइकिल को ऑप्ट किया। जिन लोगों ने फोर ड्राइव थ्योरी को ऑप्ट किया उसमें से मैं सेटिस्फाई नहीं हो सकता उन लोगों के आंसर से। रीज़न ये था कि इस सवाल को ऑप्ट करने वाले ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ ये पॉइंट्स थे उस पर मेंशन किए उसके जवाब में और उनको एक्सप्लेन नहीं किया, उनको ब्रीफ जो है बताया नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 चीज़ें बता दी कि ड्राइव टू एक्वायर, ड्राइव टू बॉन्ड, ड्राइव टू लर्न, ड्राइव टू डिफेंड है, लेकिन इनको फर्दर एक्सप्लोर नहीं किया, ये 3 चीज़ें तो कोई भी नहीं लेके आया। जिसने भी फोर ड्राइव थ्योरी की है शायद कोई एक स्टूडेंट हो जो यहाँ तक पहुँचा हो, अदरवाइज ज़्यादातर लोग जो है सिर्फ इस सेक्शन पे रहे यहाँ वाले। ठीक है जी। तो ये जब कराया गया था तो चूँकि ये फोर ड्राइव थ्योरी की एक ही स्लाइड थी, लेकिन इस स्लाइड पर यकीनन कम से कम भी कोई 5 मिनट से ज़्यादा जो है वो बात की गई थी और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए थे, लेकिन लोग ज़्यादातर सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर रहे। तो इट मीन्स कि 50% आंसर तो उन्होंने वैसे ही मिस कर दिया इसका। ठीक है जी। फाइनली फोर फेज प्रोडक्ट साइकिल में, फोर फेज प्रोडक्ट साइकिल जिन लोगों ने ऑप्ट किया है उनमें से ज़्यादातर लोग ये बेसिक ग्राफ जो है वो बनाने में कामयाब हो गए हैं। ज़्यादातर लोगों ने डिक्लाइन स्टेज में जो ग्राफ है उसको यूं करके शो किया है, ऊपर यहाँ बिल्कुल तो सीधा शो किया है। भाई अपने माइक साफ कर दीजिए आप लोग। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इसमें भी चूंकि आप वो लोग जो कि चैप्टर पे नहीं जा सके उसको देखने के लिए, वो सिर्फ इन 4 बातों तक महदूद रहे और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्ट की मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं बता सके कि किस स्टेज पे किस तरह की मैनेजमेंट रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं और किस तरह की टैक्टिक्स चाहिए होती हैं किस स्टेज पर, क्या स्ट्रेटजी अप्लाई होती है। तो इसमें हम कोई बहुत ज़्यादा डीप यकीनन नहीं गए थे, लेकिन जो दो दो तीन तीन पॉइंट मेन थे एक एक स्टेज में, उस तक बहुत कम लोग जो है उन पॉइंट्स तक पहुंच सके। ठीक है जी। ओवरऑल आपका रिजल्ट ठीक है और इंशाल्लाह इस सेमेस्टर जो और अच्छा हो जाएगा। देन डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादातर लोगों ने सही लिखा है। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन लिखते हुए सेंट्रलाइजेशन को मिक्सअप कर दिया है डिसेंट्रलाइजेशन के साथ, और बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को ऑप्ट करते हुए
بہت سارا مٹیریل لکھا ہے لیکن وہ شاید ہی کسی ایک جینون پوائنٹ تک پہنچ سکے یا اس پوائنٹ کو صحیح سے ڈسکرائب کر سکے. ٹھیک ہے جی. تو ریزلٹس میں آپ کے آبجیکٹیو سائڈ پہ جو میگزیمم مارکس کسی اسٹوڈنٹ نے حاصل کیے ہیں وہ 13.88 ہیں. سبجیکٹیو میں میکسیمم مارکس کسی اسٹوڈنٹ نے جو obtain کیے ہیں وہ 23 ہیں اور اسائنمنٹ میں 9.6. تو اس ٹیبل میں منیمم مارکس بھی انکلوڈ کیے گئے تھے لیکن میں نے منیمم مارکس کا کالم یہاں سے ہٹا دیا اس پریزنٹیشن سے پہلے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں کیا ہوگا میں نے ایسا؟ کسی کے ذہن میں آتی ہے بات؟ جی بھائی منیمم مارکس کا کالم میں نے یہاں سے ریموو کر دیا. جی بھائی کسی کو کوئی آئیڈیا ہے کہ میں نے منیمم مارکس کیوں شو نہیں کرائے یہاں آپ کو؟ No, sir. ایک چیز ہم نے پریویس سیمسٹر میں اسٹڈی کی تھی فریمنگ کی. فریمنگ آپ کو یاد ہوگا پروبیبلی ہم نے کیا تھا اس کو ڈیسیشن میکنگ کہ جس پرابلم کو یا جس ڈیٹا کو آپ فریم کر کے پریزنٹ کرتے ہیں اکثر اوقات اس کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بجائے ایکچوئل ڈیٹا کے جس کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر یہاں پر سبجیکٹیو میں اگر منیمم میں فار ایگزامپل اگر کہیں 2 مارکس لکھے ہوئے ہوتے یہاں پر تو ہر اسٹوڈنٹ نے چاہے اس نے اے گریڈ ہی کیوں نہ لے لیا اس نے بھی یہ سوچنا تھا کہ یہ والا جو 2 نمبر ہے نا یہ شاید مجھے دیے گا. وہ یہ سارا ڈیٹا چھوڑ کے اور منیمم سائڈ پہ اس کی فریمنگ ہو جاتی ہے اس کی مائنڈ کی. تو جی یہ ریزن تھا. تو آبجیکٹیو میں اپروکسیمیٹلی 14 مارکس تک لوگ چلے گئے ہیں. 9.29 ایوریج رہا ہے. سبجیکٹیو میں 23 مارکس آئی ایس دیے گئے ہیں. ایوریج 16.22 رہا ہے. اسائنمنٹ میں ایوریج 8.62 ہے. آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو میں ایک مینس کہ یہ جاتا ہے دونوں اراؤنڈ 65%. ٹھیک ہے جی. 9.29 آؤٹ آف 15 نمبر اینڈ 16.22 آؤٹ آف 25 مارکس. تو یہ اراؤنڈ ڈیٹا آپ کا بنتا ہے 65% کا. جبکہ اسائنمنٹ میں ایوریج مارکس جو ہے وہ 85% تک دیے. سملرلی اگر ریزلٹس کو ہم گریڈ وائز اس کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو میجارٹی آف اسٹوڈنٹس نے اوبٹین کیے ہیں. یہاں تک اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو میجارٹی آف اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس سائڈ پہ فال کرتے ہیں اس ایریا سی پلس سے نیچے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میجارٹی آف اسٹوڈنٹس نے 3.2 پلس جو ہے وہ سی جی پی اے اوبٹین کی ہے اس پیپر. اور کمپیریٹیولی ایک کم پورشن ہے جو کہ 3 پوائنٹ سے نیچے سی جی پی اے جس کی گئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہماری بریف ڈسکشن تھی ابھی کی تھوڑی سی معمولی سی ہمارے پیپر اور ریزلٹس کے حوالے سے. فیلئر کے نمبر جو ہے وہ لوگوں بہت کم لوگ فیل ہوئے ہیں. اچھی بات ہے جو ہوئے ہیں وہ یہ یقین رکھیں کہ اس میں سے کسی کو جو ہے وہ جان بوجھ کے فیل نہیں کیا گیا ہے. اور ابھی تک کا جو میں نے رزلٹ ڈسکس کیا اس میں نے یہی الفاظ یوز کیے ہیں کہ جس نے 3.2 پلس سی جی پی اے لی ہے اس نے لی ہے. اس کو دی نہیں گئی ہے اس نے دی ہے. سملرلی اگر کسی کے کم مارکس ہیں تو یہ کم مارکس اس نے لیے ہیں. اسی طرح سے جب آپ یہ الفاظ یوز کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے کم مارکس کیوں دیے ہیں تو یہ ایک اچھا سوال نہیں ہوتا. اس سے پہلے یہ سوچنا چاہیے آپ کو کہ آپ نے کم مارکس کیوں لیے ہیں کس وجہ سے لیے ہوں.
ठीक है जी। और जो स्टूडेंट, चंद एक स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं, उन्होंने कॉपी में लिखा है, कॉपी फिल की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके शायद ही किसी सवाल के जवाब में वो एक्चुअल आंसर को छू के भी शायद नहीं बोला। ठीक है जी। और दूसरा रीज़न उसका ये है कि वो ऑब्जेक्टिव में भी जो है वो फेल हो गए हैं, और जब ऑब्जेक्टिव में कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसके सब्जेक्टिव में इतना पोटेंशियल कम से कम होना चाहिए कि वो सब्जेक्टिव खुद अपने आप को क्लियर करा सके। तो जब वो अपने आप को क्लियर करा सकता है तो उसके बाद थोड़ा सा उसको पूछा जाता है कि अगर कहीं ऑब्जेक्टिव या असाइनमेंट या कहीं और से कोई कसर रहती है तो उसको पूरा करके कम से कम आगे जो है स्टूडेंट को निकाला जा सके। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स जो कहीं D+ पे या D- पे गए हैं, बहुत कम से GPA पे गए हैं, वो भी इस बात पे यकीन रखें कि ये कम नंबर भी उनके एडिशनल नंबर के साथ ही बनते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। यहाँ तक किसी का सवाल है कोई? No, sir. ओके। तो असाइनमेंट के मार्क्स आप लोगों को रिजल्ट्स में सेपरेटली नज़र नहीं इसलिए आ रहे होंगे कि उनकी सेपरेट जो है वो डेटा एंट्री CMS पे या LMS पे नहीं की गई थी, LMS पे। इस वजह से शायद वो आपको सेपरेटली नहीं नज़र आ रहे, लेकिन इस बात का आप यकीन रखें कि तमाम स्टूडेंट्स को असाइनमेंट के मार्क्स जो है वो दिए गए। और एवरेज मार्क्स आप देख सकते हैं कि 8.5 यानी 85% से अबव एवरेज मार्क्स जा रहे थे। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट में मार्क्स शायद 7 से कम हो, और ऐसे लोग ज़्यादातर जो कि फेल हुए हैं पेपर में। द रीज़न बीइंग कि जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनकी असाइनमेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक की गई है, और ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे तरीके से इवेलुएट भी की गई। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स असाइनमेंट में दे भी दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी करके भी, तो भी जो उनकी बचत जो है वो वहाँ से पॉसिबल नहीं थी। चलेंगे, यहाँ तक रिजल्ट्स को हम क्लोज करते हैं। अब आते हैं जी इस सेमेस्टर की हमारी कोर्स आउटलाइन कि क्या इस सेमेस्टर में हमने कवर करना है। तो 5 हमारे पास मेन यूनिट्स हैं सेकंड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में। ज़्यादातर जो, बल्कि तकरीबन ही जो काम इसमें रहना है वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 5 यूनिट्स में मार्केटिंग मैनेजमेंट फर्स्ट यूनिट है, देन सेल्स मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन, एंड फाइनली बिजनेस एंड ग्लोबल मीटिंग्स के हवाले से। इसमें से ज़्यादातर पोर्शन जो है वो हमारा कवर होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट, हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो यूटिलाइज करेगा। और देन जो सब्सटेंशियल पोर्शन है वो सेल्स मैनेजमेंट का है, और रिमेनिंग 3 पोर्शन जो है वो कंपेरेटिवली छोटे पोर्शन हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लास्ट सेमेस्टर में कर दिया था। जब हम इसको कल स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग की ओरिएंटेशन से, तो उन चीज़ों को भी ब्रीफली रिवाइज करेंगे कुछ नए डेटा और नए स्लाइड्स के साथ। और फिर हम मूव करेंगे एथिकल कंसिडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग पे, क्योंकि एक कंज्यूमर मार्केटिंग और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कुछ एस्पेक्ट्स में जो है वो डिफरेंशिएट करती है। उन एस्पेक्ट्स की वजह से एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा लाई करती हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में एज कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केटिंग। इसी यूनिट में हमारे पास एक चीज़ है जी स्टेक होल्डर्स, जो फार्मास्यूटिकल मार्केट इन्वायरमेंट के मेजर स्टेक होल्डर्स। एक तो स्टेक होल्डर्स क्या हैं, और मेजर मेजर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या उनकी नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स, ये सब चीज़ें हम यूनिट B में करेंगे। अच्छा जी, मार्केटिंग रिसर्च भी हमने थोड़ी सी ओरिएंटेशन की थी प्रीवियस सेमेस्टर में, राइट? जी भाई।
मार्केटिंग रिसर्च हमने किया था प्रीवियस सेमेस्टर में। जी सर। तो मार्केटिंग रिसर्च को हम इस सेमेस्टर में थोड़ा डीप जाएंगे, उसके प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजीज में जो है वो थोड़ा डीप जाके उसको स्टडी करेंगे। देन मार्केटिंग एनालिसिस टेक्निक्स हैं हमारे पास, जिसमें कस्टमर, कंपनी और कंपटीटर को क्या क्या चीज़ें हैं जिनको एनालाइज करते हुए हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के लिए। इस एनालिसिस करने के लिए जो हमारे पास टूल्स है मेजर ऑडिट करने के, और उस ऑडिट का जो प्रोसेस है उसको हम देन स्टडी करेंगे, और फाइनली हम यूनिट 1 में मार्केटिंग चैनल्स, प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप को स्टडी करेंगे। यूनिट 2 मेजर हमारा कवर करता है फार्मास्यूटिकल सेल्स को। इस सेल्स मैनेजमेंट में पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज वगैरह क्या हैं, ऑर्डर्स किस तरह से प्रोडक्ट्स बाई करनी है, ऑर्डर्स को रिसीव किस तरह से करना है, उनकी प्रोसेसिंग का क्या तरीक़ेकार है, कस्टमर सर्विसेज के क्राइटेरिया, सेल्स प्रमोशन और सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर एक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उसका सेल्स फोर्स साइज और उसका सेल्स कोटा, ये हम जो है ओवरव्यू करेंगे सेल्स मैनेजमेंट। ठीक जी, सेल्स मैनेजमेंट इटसेल्फ एक बहुत जो है वो ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इसमें हम रहेंगे बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम देखेंगे। अच्छा, ये देन बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट हमारा छोटा यूनिट है, इसको हम ब्रीफ जो है वो स्टडी करेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स इसके देखेंगे। बिजनेस डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज क्या क्या जनरल स्ट्रेटजीज जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग किस तरह से बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट में की जाती है और किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर जो है वो की जाती है। अच्छा जी, देन बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो मैनेजमेंट में भी आती है और मार्केटिंग में भी आती है। आपसे पहले वाले बैचेस में शायद कम्युनिकेशन को जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर्स में हमेशा स्टडी किया है, लेकिन हमारी आउटलाइन का भी क्योंकि ये पार्ट सेकंड सेमेस्टर का है, तो यहाँ पर हम इसे स्टडी कर देंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका जो कम्युनिकेशन का एक जो प्रोसेस है उसे हम स्टडी करेंगे, इसके इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स क्या हैं, मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स इस कम्युनिकेशन में आ सकती हैं और उन्हें कैसे सोल्व किया जा सकता है। फाइनली हमारे पास जो यूनिट बनता है लास्ट यूनिट, वो स्ट्रेटजीज हैं सक्सेसफुल बिजनेस एंड ग्लोबल मीटिंग्स की। इसमें हम देखेंगे कि मीटिंग्स का एक जनरल एनवायरनमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें होस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लीडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और एक पार्टिसिपेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन मीटिंग्स के दौरान, एजेंडाज, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें किस तरह से सोल्व करने का जो बेसिक क्राइटेरियाज या गाइडलाइंस हमारे पास बनी हुई है उनको हम देखेंगे। और डिफरेंट जो मीटिंग्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीटिंग्स विद डिफरेंट पर्पस, उन्हें भी हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन 5 यूनिट की बनती है, इसे हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अब अगर किसी को लगता है कि जी ये कंटेंट ज़्यादा है, तो इसका जो है वो कसूरवार मैं हरगिज़ नहीं हूँ। ये कोर्स आउटलाइन आपकी डिज़ाइन करने वाली मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो बराए मेहरबानी इसमें कोई इस किस्म की शिकायत ना करे कि जी मटेरियल बहुत ज़्यादा है या कोर्स बहुत ज़्यादा है। जितना भी कोर्स है भाई, जितना हम कर सकेंगे उतना करना है। ठीक है जी। रीडिंग रिसोर्सेज में मेन अगर हम बुक्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो प्रैक्टिकल गाइड है CRC प्रेस की, डोगामेट्सिस की, 2015 का इसका लेटेस्ट वर्जन है। जो मेरे पास अवेलेबल है वो 2002 या 3 का है। लास्ट ईयर मैंने ज़्यादातर मटेरियल जो है वो इस बुक से कवर कराया था। ठीक है जी, इस साल एक और बुक जो है उससे मटेरियल हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रिंसिपल्स, एनवायरनमेंट एंड प्रैक्टिस के नाम से। आई एम नॉट श्योर कि ये बुक्स पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, लेकिन जहाँ कहीं जो
टॉपिक जिस बुक से रेफर किया जाएगा उसका चैप्टर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा जी, जनरल जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वगैरह हैं या जो ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्शन है वो फिलिप कोटलर की बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट, पीएसएन एजुकेशन पब्लिशर्स हैं, ग्लोबल एडिशन के नाम से। इस पे एशियन एडिशन भी हैं, यूरोपियन एडिशन भी हैं, तो ग्लोबल एडिशन को जो है वो हम रेफर करें। इसके अलावा एक चीज़ जो हम एक यूनिट में स्टडी करेंगे वो IFPMA की कोड ऑफ प्रैक्टिस है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, IFPMA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की एक गाइडलाइन है, कोड ऑफ प्रैक्टिस है। तो जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन की मेंबर है उसके ऊपर ये लाजिम होता है कि वो फार्मास्यूटिकल अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हुए इन कोड ऑफ प्रैक्टिसेस का को फॉलो करे और इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, ये आपको इंटरनेट पे वैसे भी मिल जाएगी और ना भी मिले तो आपसे शेयर कर दी जाएगी। जो लेटेस्ट इसकी पब्लिकेशन है 2019 की। इसके साथ साथ बीच में जहाँ कहीं कोई आर्टिकल्स रेफर किए जाएंगे तो आपको विद इन लेक्चर प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड रेफर बता दी जाएंगी कि कौन से, और बाद में वो मटेरियल प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा। जैसे कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो मार्केटिंग है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केटिंग, उसे हम रेफर करेंगे एक आर्टिकल से। ठीक है जी, तो टीचिंग प्लान में हमारा जो यूनिट 1 है वो हमारा 40 to 50% टाइम जो है वो यूनिट 1 यूटिलाइज करेगा। ठीक जी, और उसके बाद जो यूनिट 1 से थोड़ा सा बड़ा, यूनिट 1 से कंपेरेटिवली कम बड़ा यूनिट होगा वो होगा हमारा सेल्स मैनेजमेंट का। और बाकी जो 3 यूनिट हैं वो हमारे 2 से 3 लेक्चर में, एक यूनिट 2-2, 3-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यूनिट 2 से लेकर यूनिट 5 तक हमारा 40 to 50% टाइम यूटिलाइज होगा और मेन टाइम हमारा यूटिलाइज होगा 40 to 50%। ठीक है जी, तो अराउंड 20 से 22-23 तक लेक्चर्स हमारे इस यूनिट पर होंगे, यूनिट 1 पर। और 5 to 6 जो है वो सेल्स मैनेजमेंट पे होंगे और रिमेनिंग लेक्चर्स हमारे इस सेक्शन पे आ जाएंगे। इस सेमेस्टर में ज़्यादातर हम रहेंगे इंटरेक्टिव सेशंस पर। ठीक है, और जो भी इंटरेक्टिव सेशंस या रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे होते हैं वो सीक्वेंस को फॉलो करने की हम कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस फॉलो होती रहे हमारे कोर्स आउटलाइन की। ओके जी, तो ये यूनिट बड़ा है लेकिन यहाँ ये आपको छोटा नज़र आ रहा है और ये बड़ा नज़र आ रहा है, क्यों? क्या वजह हो सकती है इसकी? जी भाई, किसी को कोई आइडिया है इसका? बात आ रही है ध्यान में? जी भाई, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नहीं? सर रिपीट कर देना ये सब। क्या करूँ, रिपीट करूँ? जी सर रिपीट कर दें। चलिए एक मिनट repeat करता हूँ। ओके जी, तो हमारे पास टाइम जो है वो लेस देन 4 मिनट्स रह गया है। ये तो मैं आपसे ही कह रहा था कि हमारा मेजर जो यूनिट है वो यूनिट 1 है। ठीक है जी, और जो हमारे लास्ट जो यूनिट है उनमें 2-2, 3-3 लेक्चर्स में वो यूनिट हमारे कवर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये यूनिट्स जो है वो ज़्यादा एक बड़े ब्लॉक्स से प्रेजेंट किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू दिस ब्लॉक। द रीज़न बीइंग कि शुरू का काम करना जो है वो बहुत आसान होता है और एंड तक उसको पहुंचाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जिसकी एक एग्जांपल हमारे पास हमारा प्रीवियस सेमेस्टर भी है, जिसमें से कि एक सेक्शन हमने मिस कर दिया था। वो कौन सा था?
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो एक सेक्शन था वो हमने मिस कर दिया था, आल्दो कि वो हमारा 2 लेक्चर में बहुत अच्छे से हो जाता, काफ़ी अच्छे से हो जाता। तो इट मीन्स कि ये सेक्शन तो हम लाजमी, यहाँ तक तो हम लाजमी ही कवर कर लेंगे। असल टारगेट है हमारा कि हम हमारे जो कंप्लीट कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकें, उसका सही तरीके से उसका हक अदा करते हैं। ठीक जी, तो असेसमेंट हमारी जो भी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ होंगी और कोविड सिचुएशन पे जो भी चीज़ें बेस करती होंगी उसकी बेस पे हम जाएंगे। इंटरनल इवेल्युएशन जो है वो क्विज़ पे, असाइनमेंट पे, और कोशिश करेंगे कि प्रेजेंटेशन उसमें इंक्लूड की जा सके। और मेरा इरादा है कि इसमें क्विज़ को जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया जा सके। इस क्विज़ को मैनेज करने के लिए 15 से 20 मिनट की कनेक्टिविटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की। 15 से 20 मिनट की कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग मोबाइल की बैटरी और इंटरनेट, जो कि आप एक सिंपल डेटा प्लान पे भी हासिल कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक जी, तो क्विज़ अगर होंगे तो उसी तरीके कार पे होंगे जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर पे किए थे, और अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं होंगे, और नहीं होने का लॉस जो है वो फिर आपको बेयर करना पड़ेगा। और क्विज़ होने के जो एडवांटेजेस हैं वो भी आपको मिलेंगे। और अगर आप उस पर रजिस्ट करेंगे कि जी नहीं, हमें पूरा दिन के लिए जो है वो उसकी स्लॉट चाहिए क्विज़ की, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है उसको करना, और मैं उसके हक में चूँकि नहीं हूँ, इसलिए हम अपने उसी तरीके कार पे क्विज़ को करेंगे। अगर ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो फिर हम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आई थिंक कि आज के दौर में एक छोटी सी ऐसी डिवाइस जिस पे कि इंटरनेट कनेक्ट किया जा सके वो सबके पास जो है अवेलेबल होती है, मोबाइल की फॉर्म में या लैपटॉप की फॉर्म। क्विज़ जो है वो मैक्सिमम 1 वीक की नोटिस पर किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के नोटिस पे क्विज़ जो है वो कनेक्ट कराया जा सकता है। और किसी भी किस्म की कोई भी असेसमेंट होगी, चाहे वो क्विज़ हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे वो फाइनल टर्म, कंप्लीट कोर्स उसमें इंक्लूड किया जाएगा। जिस दिन आपको नोटिस मिलेगा असेसमेंट का, उस दिन तक जो भी चीज़ पढ़ाई जा चुकी होगी वो उस असेसमेंट में इंक्लूड होगी। ठीक है जी, आज हमने ये बातें आपको बता के आपको ये क्लियर कर दिया ताकि किसी को इस मामले में कोई कंफ्यूजन और डाउट ना रहे। ठीक है जी, तो 1 मिनट से कम है हमारे पास, किसी का कोई सवाल? कल जो है, कल आपके पास शेड्यूल है, उसी शेड्यूल के हिसाब से